Students, how are you all? I hope you all are good. I am also good. How are your exam? I hope you did well. Children, as you know, from class 1 we have 2 semester books. And now we have completed semester 1. We have to start semester 2 book. So here I am after a long time with amazing chapters and poems. Our first lesson of semester 2 book is Kalidasa. Children, do you know what is the meaning of Kalidasa? Yes, servant of goddess Kali, हिंदुओं की देवी काली जी के सेवक. And in this chapter, in chapter 1, we will learn about Kalidasa, how a common shepherd became a famous poet and how he got his name. Before starting the chapter, I would like to tell you about Kalidasa. कालिदास एक बहुत ही फेमस पोएट थे. उन्होंने बहुत से फेमस कविताएं और ड्रामास लिखे संस्कृत भाषा में. संस्कृत इज़ एन एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया. संस्कृत हमारे भारत की सबसे पुरानी भाषा थी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कालिदासा इज ही वॉज बोर्न इन उज्जैन, मध्य प्रदेश, इन योर स्टेट. You are also living in Madhya Pradesh, isn't it? Yes. So now we will start our chapter. Semester 2, English, Lesson 1, Kalidasa, great poet in Sanskrit. This is the picture of Kalidas. Now we will read the lesson, Kalidasa. Kalidasa was the court poet of King Vikramaditya of Ujjain. He wrote many plays and poems in Sanskrit. As I have told you before, he was born in Ujjain. So that time Vikramaditya was Ujjain's king. So Kalidasa was the court poet of King Vikramaditya in Ujjain. Kalidas राजा विक्रमादित्य के कोर्ट के पोएट थे. He wrote many plays and poems in Sanskrit. उन्होंने बहुत सारी plays, ड्रामा और poems लिखी. कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में. There is a beautiful story of how Kalidasa got his name. उनकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि उनको अपना नाम कालिदास कैसे मिला. It also tells us how he became a great poet. He could not go to school because he was very poor. Because his father was very poor, that's why he's taking care of sheep. His father was having so many sheep, so he was taking care of his father's sheep. वो बहुत गरीब थे, स्कूल नहीं जा पाए थे, अपने पिता की शीप जो थी उनकी देखभाल करते थे. In a nearby city lived a king who had a beautiful and intelligent daughter. जब वो जिस गांव में रहते थे उसके पास की सिटी में एक किंग थे विक्रमादित्य. उनकी एक बहुत ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट डॉटर थी. हर नेम वॉज विद्यावती. शी सेड, whoever can answer my questions will be my husband. वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी और चालाक थी. उसने बोला, जो भी मेरे सवालों का जवाब देगा, whoever can answer my questions will be my husband. मैं उससे ही मैरिज करूँगी. Let's see what happened. In a nearby city lived a king who had a beautiful, intelligent daughter. Her name was Vidyavati. She said, whoever can answer my questions will be my husband. Many kings, warriors and learned men tried to answer her questions, but they could not. Many learned men means many intelligent person and warriors, बहुत बड़े बड़े योद्धा आए उसके क्वेश्चंस का आंसर देने, क्योंकि वो उससे मैरिज करना चाहते थे, पर कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया. They had to go away disappointed. वो बहुत डिसअपॉइंट होकर चले गए, निराश होकर चले गए. She laughed at them. They were very angry with her.
They wanted to teach her a lesson. वो उनके ऊपर हंसी कि तुम इतने बड़े वॉरियर हो और तुम मेरे सरल सवालों का आंसर नहीं दे पाए। तो जो वॉरियर्स थे, मैनी लर्न मैन थे, वो उससे नाराज़ हो गए। दे वर वेरी एंग्री विद हर। हियर 4 मीनिंग्स आर देयर। टेंड, TEND, टेंड, टेंड मीन्स टेक केयर ऑफ। वॉरियर, people who fight in a battle or a war. As I have told you, warrior means योद्धा, जो युद्ध में लड़ाई करते हैं, सैनिक। Learned, LEARNED, learn means having a lot of knowledge, जिसके पास बहुत knowledge होता है। Disappointed, DISAPPOINTED, disappointed means upset because what they hoped for did not happen. Disappointed means जब हम कुछ काम करने जाते हैं और वो काम नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। This is the meaning of disappointed. Upset because what they hoped for did not happen. Okay, now move ahead. One day some disappointed learned man saw a young shepherd sitting on the branch of a tree. When they were going from the palace, because they were very disappointed, so they were passing by a forest. There they saw a boy was sitting, as you can see in this picture, that boy was sitting on a branch and he was cutting the same branch. So a young shepherd sitting on the branch of a tree, he was cutting it. They thought, how foolish this young shepherd is. He is cutting the branch on which he is sitting. Soon he will fall down. जब उन्होंने देखा ये कितना फुलिश बॉय है, कितना मूर्ख लड़का है, जिस पर बैठा है उसी ब्रांच को कट कर रहा है, जल्दी ही ये नीचे गिर जाएगा। Soon he will fall down. Suddenly they had an idea. अचानक ही उनको एक आइडिया आया। They made a plan. They asked him to go with them to the city. Suddenly उनको आइडिया आया तो उन्होंने उस बॉय से पूछा, Will you go with us to the city? तुम हमारे साथ सिटी चलोगे, शहर चलोगे? He agreed to do so. वो तैयार हो गया because he was foolish boy. There they gave him tasty food to eat and delicious buttermilk to drink. वहाँ उन्होंने उसे बहुत टेस्टी फूड दिया खाने को, बटर मिल्क दिया पीने को। Then he slept on a soft bed. फिर वो वहाँ पर अच्छे सॉफ्ट बेड पर सो गया। When he got up, they bathed him, rubbed oil into his skin and then sprinkled perfume on him. उसके बाद जब वो सोकर उठा, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से नहलाया, ऑयल लगाया और उसके बॉडी पर परफ्यूम स्प्रिंकल करा। They dressed him in fine clothes and tied a white and gold turban on his head. उन्होंने उसे तैयार करके बहुत अच्छे कपड़े पहनाए। एक टर्बन मीन्स जो हम सिर पर पगड़ी बांधते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टर्बन। उन्होंने उसको एक सुंदर सी टर्बन टाई करी हेड पे। The poor illiterate shepherd now looked like a great scholar. A poor illiterate shepherd. Shepherd means those who take care of sheep, or illiterate means those who does not know how to read and write. जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो illiterate कहलाता है। तो the poor illiterate shepherd now looked like a great The poor illiterate shepherd now looked like a great scholar. गरीब बिना पढ़ा लिखा शेपर्ड एक बहुत स्कॉलर मीन्स पढ़ा हुआ बहुत अच्छा मैन दिखने लगा, बहुत अच्छा व्यक्ति दिखने लगा। Then they said to him, Listen shepherd, we are taking you to the king's palace. सुनो शेपर्ड, सुनो चरवाहे, हम तुम्हें राजा के महल लेकर जा रहे हैं। पैलेस मीन्स राजा का महल।
देयर द प्रिंसेस विल आस्क यू क्वेश्चंस, डोंट आंसर। वहाँ पर तुमसे प्रिंसेस राजकुमारी क्वेश्चंस करेगी, तुम उनके आंसर नहीं देना। मेक एक्शंस विद योर हैंड्स, अपने हाथ से एक्शन करना। वी विल डू द रेस्ट, बाकी सब हम देख लेंगे। द शेपर्ड अग्रीड, वो तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। द शेपर्ड एंड द लर्न मैन रीच्ड द पैलेस, द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस। शेपर्ड लर्न मैन के साथ पैलेस गया, वहाँ पर गार्ड्स उनको प्रिंसेस के पास लेकर गए। What was the name of the princess? Yes, Vidyavati. Vidyavati laughed when she saw the finely dressed young man. वहाँ वो हंसी और उसने फिर से देखा, वाओ, फाइनली ड्रेस्ड मीन्स अच्छे से कपड़े पहने हुए एक और यंग मैन मेरे पास मेरे सवालों का जवाब देने आया है। She thought another fool has come to try his luck. उसने सोचा एक और मूर्ख व्यक्ति अपना लक ट्राई करने मेरे पास आया है। द लर्न मैन सेड, प्रिंसेस, हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर, यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चंस, बट ही विल नॉट स्पीक, ही विल आंसर ओनली विद जेस्चर्स। सो लर्न मैन वॉज देयर बिकॉज दे हैव मेड प्लान बिफोर ओनली, बिकॉज उन्होंने पहले से ही प्लान बना के रखा था और उसको बोला था कि तुम किसी भी बात का आंसर मत देना, अपने मुंह से कुछ मत बोलना, क्योंकि यदि वो तो बिना पढ़ा लिखा था, ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन। सो यदि वो बोलता तो राजकुमारी समझ जाती, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि तुम शेपर्ड कुछ भी बात का आंसर मत करना। तो उन्होंने राजकुमारी से बोला, लर्न मैन ने बोला, उन्होंने बोला कि ग्रेट स्कॉलर आया है, वो आपके आंसर का वो बोल नहीं सकता, वो बोल के आपका आंसर का जवाब नहीं देगा। द लर्न मैन सेड, प्रिंसेस, हियर इज अ ग्रेट स्कॉलर। लर्न मैन ने बोला, प्रिंसेस, ये एक और बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन, तो आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, बट ही विल नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाएगा, वो बोलेगा नहीं। ही विल आंसर ओनली विद जेस्चर, जेस्चर मीन्स इशारों से जवाब देगा। द प्रिंसेस देन पॉइंटेड वन फिंगर ऑन द शेपर्ड, प्रिंसेस ने शेपर्ड को वन फिंगर पॉइंट करी। द लर्न मैन मेड साइंस टू हिम, लर्न मैन ने उसको बोला, साइंस टू हिम मीन्स उन्होंने उसको इशारा किया कि तुम 2 फिंगर्स दिखाओ। ही पॉइंटेड 2 फिंगर्स एट हर, तो शेपर्ड जो था उसने प्रिंसेस को 2 फिंगर्स शो करी। देन शी मेड मोर जेस्चर्स, फिर उसने प्रिंसेस ने और इशारे किए। ही रिप्लाइड विथ जेस्चर्स, वो सिर्फ इशारों से ही आंसर कर रहा था। कौन? दैट शेपर्ड। The scholar explained the meaning of the gesture very cleverly. The princess thought, what an intelligent man! He shall be my husband. That shepherd was giving answers only with gestures. सिर्फ इशारों से ही वो उसके सवालों का जवाब दे रहा था। तो प्रिंसेस ने सोचा, अच्छा ये तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। The next day the princess married him. After the wedding was over, she had a great shock. Next day princess ने उससे मैरिज कर ली और उसके बाद जब मैरिज पूरी हुई, जब वो शेपर्ड ने बातें करी, बोलना शुरू किया, तब प्रिंसेस को बहुत बड़ा शॉक लगा। क्या? She found out that the young scholar was an illiterate shepherd. उसको पता पड़ा कि जो यंग स्कॉलर था वो कोई और नहीं, एक इलिटरेट शेपर्ड था, वो बिना पढ़ा लिखा चरवाहा था। शी wept bitterly. She understood that the learned man had tricked her. वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी। उसे समझ में आया, जिन लोगों की मैंने बेइज्जती करी थी उन्होंने मेरे साथ ट्रिक्ड कर रहा है। What was she going to do now? अब वो क्या करे?
हाउ वॉज शी गोइंग टू लिव विद अ फुलिश हस्बैंड, वो पूरी ज़िंदगी भर एक फुलिश हस्बैंड के साथ कैसे रह सकती थी। एट लास्ट शी थॉट अ प्लान, आखिरी में उसको एक प्लान समझ में आया। शी सेड टू हर हस्बैंड, गो टू द काली टेम्पल टू नाइट एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। वहाँ उनके नगर में काली जी का टेम्पल था। उसने कहा आज रात को तुम वहाँ जाओ और जो डोर है मंदिर का उसको अंदर से बंद करके अंदर ही बैठो। एट मिडनाइट द गॉडेस काली विल नॉक ऑन द डोर एंड आस्क यू टू लेट हर इन। मिडनाइट में गॉडेस काली आएंगी और वो आपसे बोलेंगी कि डोर खोलो। टेल हर दैट यू विल ओपन द डोर ओनली इफ शी ब्लेसेस यू विद विजडम। उनसे बोलना कि मैं दरवाज़ा जब ही खोलूँगा जब मुझे आप बुद्धि का दान दोगे, आप मुझे बुद्धि का आशीर्वाद दोगे। इफ़ द गॉडेस अग्रीज ओपन द डोर एंड लेट हर इन। यदि गॉडेस अग्री हो जाएंगी, वो तैयार हो जाएंगी तुम्हें विद्या बुद्धि का से ब्लेस करने के लिए, तब तुम दरवाज़ा खोल देना। इफ़ शी डजंट अग्री टू ब्लेस यू डोंट ओपन द डोर। यदि वो तुम्हें ब्लेस करने के लिए तैयार, आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं होती हैं तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। Here some more word meanings. Illiterate, as I have told you before, what is the meaning of illiterate? A person who does not know how to read and write. जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, that person is called illiterate. Bitterly means in a way that shows feelings of sadness or anger. क्रोध और दुखी होने की फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड बिटरली। स्कॉलर मीन्स अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट। स्कॉलर मीन्स जिसको बहुत नॉलेज हो, जिसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। द शेपर्ड डिड वॉट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू। शेपर्ड ने वैसा ही किया जैसा कि प्रिंसेस ने उससे कहा था। व्हेन द गॉडेस केम शी अग्रीड टू ब्लेस हिम विद विजडम। जब गॉडेस आई उन्होंने नॉक किया डोर और उसने अंदर से शेपर्ड ने बोला कि आप मुझे विद्या बुद्धि का दान दोगी, मुझे वरदान दोगी, मुझे आशीर्वाद दोगी। देन गॉडेस काली अग्रीड टू ब्लेस हिम। देन ही ओपन द डोर। ही ओपन द डोर, देन द गॉडेस काली रोट द sacred letters of the संस्कृत लैंग्वेज ऑन हिज टंग। डोर ओपन किया और गॉडेस काली ने, देवी काली ने उसकी टंग पर संस्कृत लैंग्वेज में कुछ लिखा और इस तरह से उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। When he returned to the palace, he could sing beautiful poems in संस्कृत। जब वो पैलेस वापस आया तब वह संस्कृत भाषा में बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स गा सकता था। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। प्रिंसेस को उस पर बहुत प्राउड हुआ, गर्व हुआ। द शेपर्ड बिकेम अ ग्रेट पोएट। इस प्रकार एक बिना पढ़ा लिखा शेपर्ड एक ग्रेट पोएट बन गया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदासा और द सर्वेंट ऑफ काली। इस प्रकार उनका नाम कालिदासा पड़ गया या सर्वेंट ऑफ गॉडेस काली, काली जी के सेवक। बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम, बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम, क्योंकि गॉडेस काली ने उनको ब्लेस किया था, उनको आशीर्वाद दिया था। So children, this is the story of Kalidasa. I hope you understood this story well. So read it again, this lesson, and learn all the hard word and word meaning. I hope you understood this lesson. Thank you.